Hello students, welcome to my channel. In the last lecture we have discussed electrostatic potential difference between the 2 points. In this lecture we will discuss electric potential at a point due to system of charges. So what is the meaning of this? Suppose we have n charges, this is charge Q1 and this is charge Q2 and similarly we have charge Qn. Clear? Suppose this is our observation point. We want to calculate the electric potential at the point P. We know that these charges are in the surrounding of point P. It means we will have the value of potential at the point P due to Q1, Q2 and so on up to Qn. Clear? Now, suppose R1 is the distance of separation between Q1 and point P. Clear? Similarly, R2 is the separation between the Q2 charge and the point P. Similarly, for the nth charge, it's a separation from the point P is Rn. Clear? Now, in order to find out the potential at the point P, firstly, we will find out the potential due to charge Q1 and then due to Q2 and up to so on Qn. And we will use here the superposition principle. According to superposition principle, total potential at point P, let its value is Vp, which is equal to V1 plus V2 plus up to so on Vn. So what is V1? V1 is the potential at the point P due to the charge Q1. Clear? Similarly, V2 is the potential due to Q2. Clear? हम लिख देते हैं यहाँ पे, this is due to Q1. Clear? This is due to Q2 and this is simply due to Qn. Clear? Why we have not taken here the vector sum? Because we have seen in the last article electric potential is a scalar quantity. जैसे हमने फोर्स वाला चैप्टर पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने क्या किया था, वेक्टर सम लिया था. क्लियर? बट इन दिस चैप्टर वी विल कंसीडर इट्स सिंपल सम, नॉट इट्स वेक्टर सम, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है? सो नाउ we will find out the value of V1, V2 up to so on Vn. Then we will find out the total potential. Now, in the last we have seen if this is point A where Q charge is present, and we can find out easily the potential at the point P if the distance between these 2 points is R. Then what is the formulation for potential? 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. If charge is Q and the separation is R, then its formulation is 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. Now similarly for V1, V1 is due to Q1, so its formulation is 1 by 4 pi epsilon naught Q1 and the distance of separation between the charge and the observation point is how much? R1. Clear? Similarly for V2 we have charge Q2 and the distance is how much? R2. And the last component is charge is Qn and the point P का जो distance है वो है Rn. So this is 1 by 4 pi epsilon naught Qn by Rn. Clear बच्चों? So now इसमें से अगर हम क्या करें, 1 by 4 pi epsilon naught को कॉमन कर दें, सो अंदर क्या बचा, Q1 by R1 प्लस Q2 by R2 प्लस लास्ट में हमारी टर्म क्या बची, Qn by Rn. क्लियर? और अगर इसको हम समीशन फॉर्म में लिखें
So Vp is 1 by 4 pi epsilon naught summation, यहाँ पे Q1 Q2 अप टू so on Qn, तो यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों, Qi। जिस तरह हमारा चार्ज का सबस्क्रिप्ट है उसी तरह हमारा डिस्टेंस का सबस्क्रिप्ट है। जैसे यहाँ पे Q1 यहाँ पे R1, सो जैसे ही यहाँ पे Qi आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Ri। क्लियर? एंड द समेशन इज varies from 1 to n. So this is what? This is the value of the potential at the point P due to all these charges. Clear? So now this is very simple. Now if the charges are given in the coordinate system and we have to find out the value of potential at a particular point, then what we have to do. Clear? Suppose we have a different kind of system. In this case, suppose this is our coordinate system and this is the origin of the coordinate system. Let we have first charge Q1 which is at the position of R1 vector, sorry R1 है यहाँ पे, and we have another charge that is Q2 at the location of R2 vector, and this is Qn charge at the location of Rn vector. Clear? Suppose Q1 is present at the point A, Q2 is present at the point B, and the last one, this is present at the point N. Clear? We want to find out the value of the electric potential at the point P. What we have to find out? हम क्या करना चाहते हैं? Potential हमें find out करना है at the point P. Clear? So now, suppose its position is R vector. जहाँ पे हमने potential find out करना है, that is at the position vector R vector from the origin. Clear? Now, suppose this is AP vector. In order to find out the value of the potential at the point P, we will use here the superposition principle. So according to the superposition principle, total potential at the point P is the summation of the potentials due to all these charges. Clear? But in this case, in the formulation of potential, we have 1 by 4 pi epsilon naught Q by R, means we need only the magnitude of the distance of separation between the charge and the observation point. So one thing is very important in this case. So what is Vp? So V1 हम calculate करते हैं. V1 हमारा क्या है? Potential at the point P due to charge Q1. So what is the formulation? Formulation is 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by EP. क्लियर है? तो वैसे ये सिंपल बिल्कुल, बट थोड़ा सा इसमें एक चीज़ मैंने आपको बतानी थी तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ. सो व्हाट इज V2 ड्यू टू दिस चार्ज एट द पॉइंट P and its formulation is Q2 by BP, and the last term is due to Qn, which is Qn by NP, and these are the magnitudes, these are not the vectors. Clear? So now, using triangle AOP, what we have? We have the three vectors. This is OA vector, this is OP vector, and this is AP vector. Clear? So in this case, we can write down OP vector is OA vector plus AP vector. कहाँ से आया बच्चों ये? Using triangle law of vector addition. So what we have? AP vector क्या निकला हमारा? OP vector minus OA vector. OP vector क्या है बच्चों हमारा? This is R vector. OA vector हमारा क्या है? R1 vector. ठीक है? अब चाहिए हमें क्या यहाँ पे? Only the magnitude. हमें vector form में नहीं चाहिए. So taking the modulus on the both sides. So what is this? This is simple AP, and this is what?
r vector minus r1 vector mod. Clear? So now similarly we can also find out the values of bp. अगर हम इसको जनरलाइज करें, what is the meaning of ap vector? p का पोजीशन वेक्टर विच इज r वेक्टर माइनस a का पोजीशन वेक्टर विच इज r1 वेक्टर. तो इसी तरह हमारा bp वेक्टर क्या आएगा, उसका मॉडुलस क्या आएगा, देखो AP मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल. तो इसमें क्या आएगा, P का पोजीशन वेक्टर विच इज R वेक्टर माइनस B का पोजीशन वेक्टर विच इज R2 वेक्टर. क्लियर? एंड सिमिलरली हमारा NP क्या आएगा बच्चों, फाइनल पोजीशन P माइनस इनिशियल पोजीशन दिस वन विच इज RN. क्लियर? So now we will put the values of AP, BP and up to so on, NP in this equation. So what we can write down, we have VP which is 1 by 4 pi epsilon naught. इसको कॉमन भी कर सकते हैं, ठीक है. तो ये हमारा क्या बना, Q1 by this is R vector minus R1 vector mod, and this is Q2 by R minus R2 mod, and the last one is Qn by R minus Rn mod. So this is our answer, which is the electric potential at the point P due to these charges. Clear? इसको वेक्टर इसको समीशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 by 4 pi epsilon naught, and this is summation. ऊपर क्या आएगा, Q1 Q2 Qn, तो यहाँ पे क्या आएगा Qi, और ये R कॉमन है सभी में. सो दिस इज R वेक्टर माइनस R1 R2, सो वी विल राइट डाउन हियर Ri वेक्टर. क्लियर? और द समीशन इज फ्रॉम 1 to n. So now this is our formulation for the electric potential due to n charges when they have their position vectors. So now next we will solve the electric potential for the different type of distributions. Clear? Now in the next case, suppose charge distributions are given and we have to find out the value of electric potential at a point. So that what method we will use? Suppose this is a coordinate system. Again this is the origin. Already we have studied. We have 3 types of charge distributions. First is linear charge distribution. In the second one we have surface charge distribution, and the third one is volume charge distribution. Clear? In the linear charge distribution we have a density which is called as lambda, that is charge by length. In case of surface we have sigma, which is charge by area, and third one is the volume charge distribution, which is charge density, which is charge by volume. Clear? So now we will deal for all the 3 systems, and firstly we will start from the linear charge distribution. So first is what? Linear charge distribution. Clear? So now what is the meaning for this? Suppose we have a linear charge distribution like this, having the length capital L. Suppose Q charge is distributed over this line distribution, and we want to find out the value of the electric potential at the point P, whose position vector is R vector. कहाँ से? From the origin. Clear? So now we know that if this is a line distribution, so we will define its linear charge density, which is the ratio of charge by length. So this is charge by length, and what is the charge? Charge is Q, and the length of the system is capital L, so its linear charge density is how much? Lambda, which is Q by L. Clear?
Now we have seen in the chapter of electrostatic potential this formulation for V, which is 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. This formulation what we have studied. Clear? This formulation is applicable for point charges. किसके लिए एप्लीकेबल है बच्चों? ये पॉइंट चार्जेस के लिए. जैसे कूलम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? पॉइंट चार्जेस के लिए. इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा पॉइंट चार्जेस का जो फॉर्मुलेशन हमने पढ़ा था ई का. ठीक है, बट दिस इज नाउ अ continuous distribution, line distribution. So now this formulation is not applicable directly for this linear distribution. So what we have to do? So our first step is select a line element of length dl which approaches to 0. So first step is what? Select a line element. हमने यहाँ पे क्या किया? एक लाइन एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया जिसकी लेंथ बच्चों कितनी है? dl है, and dl is approximately equal to 0. मतलब this is not equal to 0 but it is approaching to 0, means its value is very small. So if we have this line element, so what will be the charge on this line element? Suppose its name is AB. Clear? So charge on the line element is, अगर लेंथ इसकी बहुत छोटी है तो चार्ज भी क्या होगा बच्चों? बहुत छोटा होगा. और कितना होगा? देखो लैम्डा केस के बराबर है चार्ज बाय लेंथ, और अगर चार्ज फाइंड आउट करना तो लैम्डा इनटू लेंथ. तो लैम्डा इनटू लेंथ इसकी कितनी है बच्चों? dl. क्लियर? तो इसके ऊपर चार्ज कितना होएगा? लैम्डा dl. क्लियर? सपोज its position vector from the origin is r dash vector. Clear? This is the arbitrary line element. It may be anywhere from this point to this point. Suppose its arbitrary position vector is r dash vector. Clear? So now firstly we will find out the value of electric potential. Third step क्या होगा? Firstly we will find out electric potential. कहाँ पे बच्चों? At point P. किसकी वजह से? Due to small charge dq. हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे किसकी वजह से? जो ये चार्ज है छोटा सा, कितना है वो? dq है. ठीक है. सो व्हाट विल बी द पोटेंशियल? अगर लाइन एलिमेंट छोटा सा लिया हमने dl, तो उसके ऊपर चार्ज भी हमने कितना लिया? छोटा सा dq. अगर चार्ज बहुत छोटा है तो पोटेंशियल भी यहाँ पे क्या होगा? dv. क्लियर? एंड इस फॉर्मुलेशन अभी मैंने पिछले आर्टिकल में बताया, अगर वेक्टर फॉर्म में आपको दिया हुआ तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. चार्ज कितना है बच्चों? dq. फाइनल पोजीशन मीन्स r वेक्टर माइनस कहाँ से आ रहा है पोटेंशियल? r डैश वेक्टर, इसका मॉडुलस. सो वी हैव दिस फॉर्मुलेशन. क्लियर? सो वी कैन ऑल्सो पुट द वैल्यू ऑफ dq. सो व्हाट वी हैव? 1 over 4 pi epsilon naught lambda dl by r vector minus r dash vector modulus. Clear? So ये हमारे पास क्या आ गया? This is the value of the electric potential at the point P due to the small line element having the length dl containing a charge dq. Clear? And ये हमारा क्या आ गया? थोड़ा सा पोटेंशियल आ गया at the point P. Now what we have? So now total value of potential at point P is given by. तो अब हम क्या करेंगे? ये हमने क्या किया? छोटा सा एलिमेंट सेलेक्ट किया, उसकी वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया. अब क्या करेंगे? इस तरह के छोटे छोटे एलिमेंट हम इसके ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे. क्लियर?
और छोटे छोटे एलिमेंट्स की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल है उसके लिए हम पीछे वाला सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे, टोटल पोटेंशियल एट द पॉइंट P विच इज इक्वल टू द समेशन ऑफ दीज डीवी पोटेंशियल्स, मतलब इस तरह के जो छोटे छोटे पोटेंशियल्स हमारे पास आ रहे हैं उन सबका क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे। बट हमने क्या कंडीशन ली है, dl हमारा क्या है, अप्रोक्सीमेटली टेंडिंग टू 0। अगर dl इतना छोटा कंपोनेंट है तो इंटरवल्स कितने बन गए हमारे पास, सो नंबर ऑफ लाइन एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी हो जाएंगे। तो ये समेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो Vp हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ दिस dv। सो हम क्या करेंगे, समेशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। क्यों कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमने जो लाइन एलिमेंट सेलेक्ट किया उसका साइज हमने ले लिया बहुत छोटा सा। अगर साइज बहुत छोटा है तो नंबर ऑफ लाइन एलिमेंट्स कितने बन जाएंगे, इनफाइनाइट बन जाएंगे। तो इनफाइनाइट की कंडीशन क्या होती है, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, ये समेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो हमारे पास बना क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा dl डिवाइडेड बाई r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर मॉडुलस। क्लियर बच्चों। सो ना अब इसमें से क्या क्या चीज़ कांस्टेंट है वो हम बाहर ले जाएंगे, बाकी हम यहाँ पे लिख देंगे। सो व्हाट इज Vp, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा कांस्टेंट है। लैम्बडा, अगर तो उन्होंने कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म दी है तो लैम्बडा बाहर आ जाएगा, मतलब ये कांस्टेंट है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं तो लैम्बडा कांस्टेंट नहीं होगा तो बाहर नहीं आएगा। क्लियर। सो नाउ दिस लेंथ इज आर्बिट्रेरी सिलेक्टेड, सो इट विल रिमेन इनसाइड एंड दिस इज व्हाट, ये हमारा आर वेक्टर तो फिक्स है बट आर डैश वेक्टर फिक्स नहीं है क्योंकि एलिमेंट हमें आर्बिट्रेरीली सिलेक्ट किया था, तो ये बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा क्या बन गया, दिस इज अवर आंसर। किसके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसकी वजह से, ड्यू टू अ लाइन डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमने कौन सी ली थी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, हाँ जी बच्चों, इसके बाद क्या है हमारे पास, सपोज we have surface charge distribution. In case of surface charge distribution, we have the same concept. Suppose we have a surface like this and charge is distributed over the surface. इसकी जो हमारी surface charge density है, suppose this is sigma and the surface is how much, this is capital S. Clear? Let Q charge is distributed. So we have this is Q. Clear? So in this case what will be sigma? Sigma will be Q by capital S. So again in this case what we will do, we will select firstly a surface area element of value ds and then we will find out the charge on the surface area element. Now the charge will be in this case, तो ये इसमें क्या आएगा हमारे पास, सिग्मा इंटू ds। क्लियर, सेम फॉर्मुलेशन यूज कर रहे हैं। हमारा सिग्मा किसके बराबर होता है, चार्ज बाय एरिया, और चार्ज हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया। सिग्मा इंटू एरिया का कितना लिया हमने, ds, सो इट्स चार्ज इज हाउ मच, dq विच इज सिग्मा ds। नाउ अगेन वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट द पॉइंट P विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर एरिया एलिमेंट बच्चों छोटा सा है तो चार्ज भी हमने छोटा सा ले लिया, अगर चार्ज छोटा सा है तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल भी क्या होगा, छोटा सा होगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, dv 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई अगेन फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, वो हमने सिमिलरली ले लिया कि उसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास कितना है, r डैश है। सो टोटल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, इट्स इंटीग्रेशन। क्लियर, सो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा क्या आया, dq बाई r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर। सो व्हाट वी हैव, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, dq हमारा क्या बच्चों, सिग्मा ds बाई r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर। अगर इसमें से सिग्मा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो बाहर आ जाएगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो सिग्मा बाहर
नहीं आएगा। क्लियर? सो नाउ द लास्ट वन इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके लिए आप खुद करके देखना, मैं आपको बता देता हूँ सीधा रिजल्ट क्या आएगा। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का रिजल्ट आएगा, देखो इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पीछे वाले में भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया था, तो इसमें भी हमारा क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? सो इंटीग्रेशन वहाँ पे हमारे पास आया था लैम्बडा dl, इसमें क्या आया सिग्मा ds, तो इसमें क्या आएगा हमारा रो dv। क्लियर? और नीचे जो डायमेंशंस हैं वो सेम चल रहे हैं, सो इट्स आंसर इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो dv आ जाएगा बस। क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? So now the next article is electric potential due to an electric dipole at any point. Clear? So जैसे बच्चों हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और एट द जर्नल पॉइंट। सो सिमिलरली वी विल फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है? सो नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस. First is minus q and second is plus q. These two charges are separated by a distance 2a. Clear? So this is the system of two charges separated by a certain distance is called as the electric dipole. Clear? Let its center is O and we have to find out the value at any point. Clear? Means we are doing the general article. Let the point P is our observation point. It may be on the axial line on this side or on the equatorial line like this, or it may be at any point. Suppose this line vector OP makes an angle theta with the direction of the dipole. Clear? अगर ये हमारा थीटा क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा, तो ये कौन सा केस बन जाएगा एक्सियल का केस बन जाएगा। पॉइंट P कहाँ पे आ जाएगा, इधर घूम के एक्सियल लाइन पे आ जाएगा। अगर थीटा बच्चों 90 डिग्री हो गया तो ये कौन सा बन जाएगा, फिर इक्वेटोरियल वाला बन जाएगा। क्लियर? सो इसलिए हम जर्नल केस कर रहे हैं, उसमें ये दोनों आर्टिकल कवर हो जाएंगे। ठीक है? सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग फॉर दिस? नाउ अगेन वी हैव द टू पॉइंट्स माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एंड दिस इज अ पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट P. सो नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट P which is equal to potential due to minus q and potential due to plus q. Clear? Because again we have seen in the last case that the potential at a point due to different charges is simply the summation of the potentials due to all the charges. Clear? So now firstly we will write down what is the meaning for the potential due to minus q. Suppose this distance is AP and this distance is BP. So what is the formulation for potential? We have already seen this is 1/4 pi epsilon naught q by r. एक तो हमें चार्ज चाहिए जिसकी वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, मीन्स ये माइनस क्यू हो गया और तो ये प्लस क्यू हो गया। एक हमें डिस्टेंस चाहिए r which is the separation between the charge and the observation point. Clear? So now what is the value of potential at the point P due to minus q charge? This is 1/4 pi epsilon naught. चार्ज क्या दिया बच्चों माइनस q दिया है एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन? दिस इज AP. ठीक है? AP डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, चार्ज से लेके ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक। एंड नाउ ड्यू टू प्लस q चार्ज ये हमारा क्या बनेगा 1/4 pi epsilon naught q by this distance is BP. ठीक है? सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग फॉर दिस? अगर आपको याद होगा जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में किया था आर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, तो हमने वहाँ पे एक कंडीशन ली थी, आपको याद होगा दैट R इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू E. क्लियर? अब यहाँ पे हमने AP फाइंड आउट करना है, बट हमें गिवन सिर्फ क्या है 2A, ये दिया है AB. क्लियर? AB दिया है मीन्स ये हमें A दे दिया और ये भी हमें A दे दिया बिकॉज O इसका क्या है डाइपोल का सेंटर है। ठीक है? सो नाउ अगर हमें यहाँ पे कोई राइट एंगल ट्रायंगल वगैरह होती तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के इजीली इसको सॉल्व कर लेते। तो इसको एक ट्रिक लगाएंगे, तो इसको कैसे सॉल्व करना है हम देखते हैं। इस लाइन को हमने क्या किया एक्सटेंड कर लिया इसे।
ठीक है। ए पॉइंट से ये जो लाइन है ओपी वाली लाइन, एक्सटेंडेड लाइन के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सपोज दिस इज पॉइंट एम। सिमिलरली हमने क्या किया, बी पॉइंट से दिस लाइन ओपी के ऊपर इस तरह यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सो ये सपोज द पॉइंट इज एन। यहाँ पे कितना एंगल बन गया बच्चों, दिस इज एंगल 90 डिग्री एंड दिस इज एंगल 90 डिग्री, ठीक है। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो बच्चों ये वाला एंगल भी थीटा बन गया, ठीक है। तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गई, बनाता हूं मैं इनको। दिस इज एम ओ ए। सेकेंड ट्रायंगल बच्चों हमारी बनी ओ बी एन। क्लियर। इन द फर्स्ट ट्रायंगल AMO, ये हमारा कितना है ए, और इसमें OB हमारा कितना है ए, ठीक है। सॉरी, दिस OBN, राइट एंगल हमारा कहाँ पे है बच्चों, N पे है, ठीक है। और थीटा कहाँ पे बन रहा है, O पे बन रहा है। तो ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा बना, B बना, ठीक है। और डिस्टेंस हमें कौन सा दिया, OB, मतलब ये वाला डिस्टेंस दिया है हमें, दिस डिस्टेंस इज A। दिस एंगल इज थीटा BON। देखो यहाँ पे एंगल BON, ये हमें थीटा दिया है। और इधर क्या दिया है, AOM, ये वाला एंगल भी कितना दिया है, थीटा दिया है, ठीक है। अगर हम देखें फ्रॉम दिस ट्रायंगल AMP, इसमें क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल AMP में, ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, AP स्क्वायर विच इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर, ठीक है। ये लिख सकते हैं, दिस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड दिस इज बेस स्क्वायर, ठीक है। अगर हम कंडीशन लगा लें, हमने क्या लिया, दिस पॉइंट R लिया है फ्रॉम द सेंटर टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस, मैं लिख देता हूं, R इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पॉइंट P, कहां से बच्चों, फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। सेंटर ऑफ डाइपोल से हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है। हमने अगर यहाँ पे एक कंडीशन ले ली दैट R इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू A, तो हमारा बना क्या, दिस इज R, और ये वाला जो कंपोनेंट है OM और AM, अगर हम इसको निकालें फ्रॉम दिस ट्रायंगल AMO के अंदर से हम इसको निकालें तो हमारा क्या बनेगा, दिस इज थीटा, दिस इज साइन थीटा, हमारा क्या बना बच्चों, AM बाई AO, AM ये वाला हमारा क्या बना, A साइन थीटा, और हमारा MO क्या बना बच्चों, ये वाला, आप कॉस की T रेशो ले लेना तो ये बनेगा A कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। मतलब जो AM है और MO है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ A। और साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू भी क्या होती है हमारी, लेस देन 1 होती है। इसका मतलब अगर ये जितना भी हुआ, अगर थीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ 90 से कम हुई तो ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू V हमारी 1 से कम होगी। इट मीन्स दैट इफ R इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू A, तो हम क्या करेंगे, ये AM को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हमारा AP स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू MP स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। सो इफ दिस डिस्टेंस इज वेरी लार्ज, सो दिस लेंथ AP इज ऑलमोस्ट इक्वल टू MP, ठीक है। हमने ये वाला फैक्टर नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि ये वाला फैक्टर तो हमारा, इसमें तो R भी है, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो ये वाला फैक्टर ड्यू टू A स्मॉल वैल्यू हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो AP हमारा क्या है बच्चों, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू MP बच्चों हमारा क्या है, MP इज MO प्लस OP,
ठीक है। AP जो हमें चाहिए, MO कितना है हमारा, MO दिस इज A cos थीटा प्लस OP हमारा कितना है, दिस इज OP विच इज R। तो हमारा AP कितना आ गया बच्चों, दिस इज R प्लस A cos थीटा। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, हमारा AP कितना आया, R प्लस A cos थीटा, ठीक है। नाउ सिमिलरली अगर हम दूसरी ट्रायंगल देखें, सिमिलरली ट्रायंगल ये हमारी बनी BNP, इसमें हमारी राइट एंगल ट्रायंगल क्या बनी, O ये बनी एट द एंगल 90 डिग्री, कहाँ पे बना हमारा, N पे। तो हमारी बनी क्या थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगी, BP स्क्वायर विच इज इक्वल टू BN स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर, क्लियर। और यहाँ पे भी अगर हम T रेशो लगाएं, ये हमारी क्या है, BN दिस इज इक्वल टू A साइन थीटा, और ये हमारी NO क्या है, दिस इज A cos of theta, ठीक है। बाय सिंपल यूजिंग द T ratios, if this angle is theta and this is A, so this is A cos theta and this is A sin theta, ठीक है। अगर हम ये वाला पॉइंट बहुत दूर है तो इसमें भी क्या नजर आएगा, दिस पॉइंट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस पॉइंट, सॉरी दिस डिस्टेंस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस डिस्टेंस, मीन्स इफ R इज वेरी वेरी लार्ज, तो हमें क्या नजर आएगा, BP स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू NP स्क्वायर, क्लियर। तो हमें निकालना है BP विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू NP, और NP हमारा है क्या, दिस इज OP माइनस ON, हमें चाहिए NP, दिस इज ON माइनस इतना कर दें तो ये बच जाएगा NP। सो व्हाट इज BP, दिस इज OP हमारा क्या है बच्चों, दिस इज R माइनस ON हमारा क्या है बच्चों, A cos थीटा, दिस इज A cos थीटा। सो हमारा BP क्या बना बच्चों, R माइनस A cos थीटा, ठीक है। सो नाउ वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ दिस AP and BP in the equation and we will solve for the electric potential at the point P. Now what is this BP? VP is, अगर हम करें यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, चार्ज भी हमारा कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचा -1/EP और यहाँ बना +1/BP, क्लियर। सो नाउ व्हाट इज दिस, VP इज Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम पॉजिटिव रकम को आगे लिख लेते हैं, ये बनेगा हमारा R माइनस A cos थीटा माइनस 1/, ये बना बच्चों R प्लस A cos थीटा, क्लियर। तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हमारा कितना आया, R माइनस A cos थीटा इंटू R प्लस A cos थीटा, ठीक है। पहले इससे डिवाइड कर दिया तो ये बच गया R प्लस A cos थीटा माइनस R माइनस A cos थीटा, क्लियर। सो ये खोलेंगे, R कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचा बच्चों क्या, Q/4 बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा बचा 2A cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई, देखो R माइनस A cos थीटा, R प्लस A cos थीटा, ये क्या बनेगा हमारा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और हमें पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Q इंटू 2A, Q इंटू 2A इज व्हाट, दिस इज P, सो वी कैन सिंपली राइट डाउन दिस Q इंटू 2A इज व्हाट, दिस इज magnitude of P, this is the dipole moment. So what is the value of the electric potential at the point P, this is P cos of theta because this is Q into 2A, clear, by 4 pi epsilon naught, this is R square minus A square cos square theta, clear. So now this is our expression
फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहाँ पे आ गया बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? एट द पॉइंट P। क्लियर? सो नाउ वी हैव अ स्पेशल केस। इफ theta is 0 degree means observation point P is on the axial line, point P is on axial line। तो ये क्या बनेगा? VP कितना बनेगा? cos 0 हमारा कितना होता है? 1। सो ये बना P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है। और सेकेंड पॉइंट, if theta is 90 degree means ये OP घूम के ऐसे चला गया, point P lies on इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर? तो क्या होगा? cos 90 हमारा कितना होता है? 0। cos 90 कितना है बच्चों? 0। तो फिर सारा VP हमारा कितना हो गया? 0। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट P when it is on the equatorial line its value is 0। क्लियर? सो नाउ कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इसके बाद हम। देखते हैं कैसे करनी है। हाँ जी बच्चों, इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at the center of sphere whose side is under root 2 meter if charges on the corners of the sphere are 2 microcoulomb, -2 microcoulomb, 3 microcoulomb and -3 microcoulomb। क्लियर? तो हमें ये एक स्टेटमेंट दी है, उसमें हमें क्या दिया है? एक स्फीयर दी है बच्चों। लेट द नेम इज ABCD एंड द चार्जेस आर, कहीं पे भी ले लो चार्जेस, उन्होंने मेंशन नहीं किया। अगर मेंशन किया होता तो हम उस हिसाब से ले लेते। हम A पे ले लेते हैं 2 माइक्रोकूलम, दिस इज -2 माइक्रोकूलम, दिस इज 3 माइक्रोकूलम एंड दिस चार्ज इज -3 माइक्रोकूलम। क्लियर? सो ईच साइड कितनी दी है हमें? √2 मीटर। दिस इज √2, √2, दिस इज √2, दिस इज √2। और बोला गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना कहाँ पे? सेंटर ऑफ द स्फीयर पे। मीन्स इसका सेंटर हमने बना लिया। लेट द पॉइंट इज O एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट द पॉइंट O विच इज इक्वल टू, वी नो दैट, अभी हमने पढ़ा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो व्हाट इज द मीनिंग फॉर दिस? पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट A प्लस ड्यू टू पॉइंट B प्लस ड्यू टू पॉइंट C एंड द लास्ट वन इज D। क्लियर? अगर हमने सभी चार्जेस की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करना है एट द पॉइंट O, तो हमें ये सारे डिस्टेंसेस पता होने चाहिए। ठीक है? ईच साइड कितनी दी है? √2। अगर हम यहाँ से AC कैलकुलेट करें, AC स्क्वायर विच इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है बच्चों? √2, तो ये कितना बन गया? 2 + 2 विच इज 4। तो हमारा AC कितना बन गया बच्चों? 2 मीटर बन गया। इफ दिस डिस्टेंस इज 2, सो दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर। Similarly, these distances are also 1 meter. Clear? So now, what is the meaning of the potential at the point O? This is 1/4 pi epsilon naught। हमने फॉर्मूलेशन पढ़ा था QI by RI। R varies from 1 to n। So the charges कितने हैं बच्चों? 4 charges हैं, तो I varies from 1 to 4। Clear? So now 1/4 pi epsilon naught, ये कितना बना? फर्स्ट चार्ज हमारा है 2 माइक्रोकूलम। इसका डिस्टेंस कितना है बच्चों? 1 मीटर, 1 आ गया। सेकंड चार्ज बच्चों -2 माइक्रोकूलम। तो इसमें हमने क्या माइनस और प्लस, अगर दिया है चार्ज का तो अकॉर्डिंगली लेना है। अगर पॉजिटिव चार्ज दिया है तो पॉजिटिव लेना है, अगर नेगेटिव दिया तो नेगेटिव लेना है। सो दिस इज -2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 1/3। QC की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? 3 माइक्रोकूलम over 1 and last one is
-3 माइक्रोकूलम ऑफ प्रोटॉन। तो ये सारी वैल्यूज क्या हो रही हैं बच्चों, ये कैंसिल हो रही हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग फॉर दिस, पोटेंशियल एट द पॉइंट O इज 0। क्लियर। तो ये इस तरह का न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों कैसे करना है। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट चार्जेस each of magnitude 3 microcoulomb and charges are present at the distance of 3, 9, 20 centimeter from the origin along the x-axis. Clear? So we have to find out the electric potential at the origin. So what is the meaning for this? Suppose this is our origin and this is x-axis. Origin matlab x equal to 0. Clear? So we have infinite charges. The first charge is Q1 which is at the distance of कितना दिया हमें 3 सेंटीमीटर, और दूसरा चार्ज हमें दिया है Q2 at the distance of 9 सेंटीमीटर and third charge is at the distance of 27 सेंटीमीटर। तो यही हमारा चल रहा है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे फाइंड आउट करना है। क्लियर। सो नाउ व्हाट वी हैव, अगेन वी विल यूज द वैल्यू फॉर्मुलेशन फॉर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज I varies from 1 to n which is QI by RI। ठीक है, हमें ईच चार्ज कितना दिया बच्चों, सभी जगह पे जो चार्ज है वो बराबर है, कितना है 3 माइक्रोकूलम विच इज 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है। सो नाउ वी एट द पॉइंट O विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन। फर्स्ट चार्ज बच्चों हमारे पास क्या है Q1 विच इज 3 माइक्रोकूलम। सो दिस इज 3 माइक्रोकूलम एंड हाउ मच इज द डिस्टेंस बिटवीन charge and the observation point, this is 3 centimeter. So this is 3 centimeter means 3 into 10⁻². Clear? So now second charge is again Q2 which is 3 microcoulomb and distance बच्चों हमारा क्या 9 centimeter which is 9 into 10⁻²। थर्ड चार्ज बच्चों हमारा क्या है अगेन 3 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस अब कितना हो गया 27 इंटू 10⁻², क्योंकि हमने डिस्टेंस कहाँ से देखना है ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, वो हमारा क्या है ओरिजिन। सो दीज चार्जेस आर लाइक दिस एंड लास्ट हमारा क्या बनेगा बच्चों, इनफाइनाइट तक जाएगा, इन्फिनिटी टर्म बनेगी हमारी। सो नाउ इन दिस केस अगर हम देखें तो क्या चीज़ हमारी कॉमन आ रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो पहली बार निकल गया। ऊपर हमारा क्या बना 3 माइक्रोकूलम विच इज 3 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, और 10⁻⁻2 भी बच्चों कॉमन आ रहा है। सो दिस इज 10⁻⁻2। ठीक है, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। क्लियर। सो नाउ इसको देखते हैं क्या बनेगा ये। So now this VO means potential at the point O which is 3 into 10⁻⁶ by ये 10⁻² भी ऊपर चला जाएगा, कितना बन गया बेटा 10⁸ डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या चीज़ नज़र आ रही है, हमने दो तरह की सीरीज पढ़ी थी, एक AP सीरीज मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, दूसरी GP सीरीज। तो ये क्या है हमारे पास, एक तरह की सीरीज नजर आ रही है विच इज 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 अप टू सो ऑन। तो अगर हम इसको देखें, इसकी जो फर्स्ट टर्म है अगर इसको हम ऐसे देखें A प्लस AR प्लस AR² अप टू इनफाइनाइट तक, अगर हम A की वैल्यू 1/3 ले लें और R की वैल्यू बच्चों 1/3 ले लें, तो ये वाली सीरीज यही नहीं बन जाएगी। ये देखो A की वैल्यू कितनी ले ली हमने 1/3 प्लस नेक्स्ट A कितना है 1/3, R कितना है 1/3, तो ये क्या बन जाएगा 1/9।
ठीक है। नेक्स्ट केस में a 1/3 और ये 1/3 स्क्वायर मीन्स 1/3 रेज़्ड पावर 3 विच इज़ 27। सो ये इस तरह चलता जाएगा। क्लियर? इसको हम बोलते हैं सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्लियर? तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूलेशन हमारे पास आता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूलेशन बच्चों क्या होता है, अगर हमारे पास इस तरह से कोई सीरीज़ हो a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक चले, और इसमें कंडीशन क्या होती है, जो r है वो लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है। तो इसका सम ऑफ फॉर्मूलेशन, इसका सम क्या होता है, a/1 माइनस r। क्लियर? हमारी वाली जो सीरीज है उसमें हमारा a कितना है बच्चों, 1/3, r कितना है, वो भी 1/3। तो अगर ये दोनों 1/3 है तो हमारा सम क्या बनेगा, सम क्या बनेगा, दिस इज a/1/r विच इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1 माइनस 1/3। तो ये समीशन कितना बना, 1/3 बाई 1 माइनस 1/3 विच इज 2/3, 3 कैंसल, सो दिस इज 1/2। क्लियर? इसका मतलब ये सारी जो सीरीज है इसका सम हमारा कितना आ गया, 1/2। क्लियर? तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी रख देते हैं बेटा, 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, v एट द पॉइंट o विच इज इक्वल टू, ये कितना बना, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3 इंटू 10⁸ सॉरी ये हमारा -6 था, ऊपर जाके ये बना, यहाँ पे आएगा -4। ठीक है, देखो ये -6 था, ये -2 है, ऊपर जाके +2 बनेगा, ये -6 और +2 -4 आएगा। ठीक है, into 1/2। so what we have, this is what VO is 93 into 3/2 into 10⁵। so this is 27/2 into 10⁵, which is 13.5 into 10⁵। and what is the unit for potential, unit is volt। so its answer is 13.5 into 10⁵। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, this is 1.35 into 10⁶ volt। clear? so now next is what, हाँ जी बच्चों, इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सपोज a circular loop of charge with charge 100 plus 100 microcoulomb with radius 3 millimeter, find the electric potential at its center। clear? so what we have a circular loop of charge। इसका सेंटर हमें क्या दिया बच्चों, O दिया है। इसके ऊपर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है सर्कुलर लूप के ऊपर, लेट द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज हाउ मच, this the given charge is plus 100 microcoulomb। clear? and the radius हमें कितना दिया बच्चों, 3 मिलीमीटर। सर्कुलर लूप का रेडियस कितना है, 3 मिलीमीटर। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कहाँ पे करना है, एट द सेंटर, एट द पॉइंट O। क्लियर? so now we know that this is a line distribution। so in case of line distribution we have studied what is the potential, this is 1/4 pi epsilon naught integration of lambda dl over r vector minus r dash vector। क्लियर? तो अगर मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाऊं, व्हाट इज आर वेक्टर, आर वेक्टर था बच्चों ऑब्जर्वेशन पोजीशन वेक्टर ऑफ
ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। क्लियर? तो हमने जब स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन की थी उसमें आर वेक्टर हमारा क्या था, ऑब्जर्वेशन पॉइंट था किसका, सॉरी पोजीशन वेक्टर था। आर वेक्टर हमारा क्या था बच्चों, पोजीशन वेक्टर था हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट का, कहां से, ओरिजिन से। और आर डैश वेक्टर हमारा क्या था, पोजीशन वेक्टर था ऑफ लाइन एलिमेंट, जो हमने एक छोटा सा लाइन एलिमेंट सेलेक्ट किया था, कहां से, ओरिजिन से। ठीक है, हमने अब क्या करना है, हमने ये ओ पॉइंट के ऊपर क्या फाइंड आउट करना है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक सपोजिशन ले लेते हैं, लेट द सेंटर ऑफ लूप इज एट ओरिजिन। अगर ये लूप को ही हम कहाँ पे ले लें, उसके सेंटर को कहाँ पे ले लें, ओरिजिन पे ले लें, मतलब लाइक दिस, हम 0 0 सपोज कर लें यहाँ पे, तो हमारा आर वेक्टर क्या बन गया, आर वेक्टर था हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। और अब हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट ही कहाँ पे आ गया, ओरिजिन पे आ गया, तो उसका आर वेक्टर क्या बन गया बच्चों, 0i 0j 0k। अगर हम 3 डायमेंशंस में ले रहे हैं तो उसका मॉडुलस हमें कितना बन गया बच्चों, दिस इज सिंपली 0 आ गया हमारा। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज दिस, ये हमारा आर वेक्टर क्या है। अब हमने क्या लिया, इसका कोई एक लाइन एलिमेंट यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अगर हम, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है आर डैश वेक्टर, कोई भी लाइन एलिमेंट का, ठीक है, कहाँ से, ओरिजिन से। तो अगर हम आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर करेंगे और उसका मॉडुलस देखेंगे तो किसके बराबर आएगा, रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर आएगा, या रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप के बराबर आएगा। और वो हमें कितना दिया है बच्चों, दैट इज 3 मिलीमीटर। ठीक है, अब क्या है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है लाइन एलिमेंट का, और ये किसका पोजीशन वेक्टर है, यहाँ पे ही कौन पड़ा है, हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर क्या आ गया, हमारा दिस वेक्टर आ गया। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी नजर आ रही है हमें, 3 मिलीमीटर। ठीक है, तो हमारा v का फॉर्मुलेशन क्या बनेगा, v का फॉर्मुलेशन बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये वैल्यू तो हमारी कांस्टेंट होगी, तो इंटीग्रेशन से क्या आ जाएगी बच्चों, बाहर आ जाएगी, विच इज 3 मिलीमीटर। इंटीग्रेशन में क्या बना, इंटीग्रेशन में बना लैम्बडा इंटू dl। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज दिस लैम्बडा इंटू dl। सो नाउ इफ as lambda is यूनिफॉर्म, मीन्स ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है लूप के ऊपर वो यूनिफॉर्म है। इफ एज लैम्बडा इज यूनिफॉर्म, सो v हमारा क्या बनेगा, लैम्बडा बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/3 mm। लैम्बडा भी बाहर आ गया बच्चों। इंटीग्रेशन में क्या बच गया हमारा dl। और इस तरह के जब एलिमेंट्स का हम इंटीग्रेट करेंगे, उसको छोटे छोटे एलिमेंट्स को लेके हम पूरे सर्कुलर लूप के लिए जोड़ देंगे, तो वो क्या बनेगा, dl हमारा क्या बनेगा 2 पाई r। ठीक है, अगर ये हमारा रेडियस है ना सर्कल का, तो मैग्नीट्यूड अगर r है इसका, तो ये क्या बनेगा 2 पाई r, सर्कमफ्रेंस बन जाएगा। तो ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा इंटू 2 पाई r बाई 3 mm। सो व्हाट इज द मीनिंग फॉर लैम्बडा, लैम्बडा क्या होता है बेटा, चार्ज बाय लेंथ। इसके ऊपर चार्ज कितना है क्यू, और उसकी लेंथ कितनी है 2 पाई r। सो व्हाट इज क्यू, दिस इज लैम्बडा इंटू 2 पाई r सर्कमफ्रेंस। सो व्हाट इज लैम्बडा इंटू 2 पाई r, दिस इज द चार्ज ऑन द लूप। चार्ज कितना दिया हमें, 100 माइक्रोकूलम। सो दिस इज व्हाट Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 mm। इसको R भी ले सकते हैं हम, कुछ भी लिख सकते हैं, 3 mm नहीं लिखना तो। सो दिस इज, सो नाउ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू चार्ज हमारा कितना है बच्चों 100 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई दिस इज R 3 mm, 3 इंटू 10⁻⁻3। सो ये हमारा कितना बना 3
इंटू ये हमारा बना 10⁻⁹, ये 10⁻², ये -6, 10⁻⁻⁴, ये ऊपर जाके 10⁻³ बन गया। सो 9 × 3, 9 + 3 12 -4 8, 3 × 10⁸ वोल्ट, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से न्यूमेरिकल्स आप ट्राई करो, आपके न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाएंगे। और आपको अगर मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।